آج کا بیان اگر آپ نے نہ سنا تو ساری زندگی پچھتاتے رہو گے، کیونکہ یہ وہ گہری باتیں ہیں جو وقت گزرنے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں، مگر اس وقت سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ آج کے بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 خاص چیزیں دیکھنا کیوں ضروری ہے۔ جو شوہر صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ڈالتا ہے، اللہ اس پر اس قدر راضی ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ ایسے شوہر پر دن رات رحمت کی بارش اترتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور زندگی اس طرح بدلتی ہے کہ جیسے بند قسمت پر اچانک روشنی اتر آئی ہو۔ جو شوہر صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 خاص چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں، ایسے شوہروں پر ان کی بیویاں ٹوٹ کر اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں، کیونکہ عورت صرف لفظوں سے نہیں بلکہ رویوں سے محبت پہچانتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی بیویاں ہمیشہ کے لیے خوش رہتی ہیں، دل سے جڑ جاتی ہیں اور زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ نبھاتی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر بیوی کی وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جن پر نظر ڈالنے سے شوہر کے گھر میں رحمت کی بارش برستی ہے، رزق اور دولت کی بھی بارش ہوتی ہے۔ مگر اس راز تک پہنچنے سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں، تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو اور آپ آج کے بیان سے خالی ہاتھ واپس نہ جائیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، وہ اہم معلومات یہ ہے کہ ہمارے دادا، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام جب صبح نیند سے بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت اماں حوا کی 3 چیزوں پر غور سے نظر ڈالتے تھے۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا کی وہ 3 چیزیں محبت اور توجہ سے دیکھ لیتے تھے تو وہ دن دونوں میاں بیوی کے لیے ایسا گزرتا تھا جیسے جنت کا کوئی لمحہ زمین پر اتر آیا ہو۔ دلوں میں سکون ہوتا تھا، باتوں میں نرمی ہوتی تھی اور گھر کی فضا رحمت سے بھر جاتی تھی۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، ایک دن ایسا آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام صبح سویرے اٹھتے ہی حضرت اماں حوا کی 3 چیزیں دیکھنا بھول گئے، وہی 3 چیزیں جن پر نظر ڈالنا رحمت کا سبب بنتا تھا۔ اور یہی وہ دن تھا جب دنیا میں پہلی مرتبہ ایک شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف نے جنم لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی یعنی کہ حضرت اماں حوا حیران رہ گئیں، دل میں سوال اٹھنے لگے کہ آخر یہ سب اچانک کیوں ہو گیا؟ ہمارا گھر تو جنت کا ٹکڑا تھا، آج حضرت آدم علیہ السلام بیوی کے سامنے اونچی آواز میں کیسے بولنے لگے؟ پھر حضرت اماں حوا نے غور کیا، سوچا اور حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ آج حضرت آدم علیہ السلام نے صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 چیزوں پر غور نہیں کیا تھا، یعنی دن کی شروعات محبت اور توجہ سے نہیں ہوئی تھی، اسی لیے آج کا دن اچھا نہیں۔ اس کے بعد حضرت اماں حوا نے نرمی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ آج آپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، آج وہ ایک اہم بات آپ سے چھوٹ گئی ہے، اسی وجہ سے آج کا دن بے سکونی میں گزرا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو دل سے سمجھ لیا اور اس کے بعد روزانہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے بیوی کی 3 چیزوں پر غور کرنے لگے۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، جب بھی حضرت آدم اپنی بیوی کی 3 چیزوں پر غور کرتے تھے تو پھر پورا دن ان کے گھر میں رحمت کی بارش برستی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اماں حوا کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، مگر وقت پھر بھی نہ رکا، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کے لیے ٹھہرتا ہے۔ اس واقعے کو ہزاروں سال گزر گئے، صدیاں بیت گئیں، مگر انسان کی آزمائش ختم نہ ہوئی۔ ہزاروں سال بعد ایک دن حضرت مولانا رومی کے پاس ایک شخص آیا، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت مولانا رومی ایک بہت بڑی اعلیٰ اور باکمال شخصیت تھے۔ ایسی ایسی کتابیں لکھیں کہ آج بھی دلوں کو ہلا دیتی ہیں، روحوں کو جگا دیتی ہیں اور انسان کو خود سے آشنا کر دیتی ہیں۔ خیر، وہ شخص حضرت مولانا رومی کے پاس آیا، اس کے چہرے پر پریشانیوں کے گہرے آثار تھے، آنکھوں میں بے بسی تھی، آواز میں ٹوٹ پھوٹ تھی۔ وہ کہنے لگا، حضرت، آج میں صبح اٹھتے ہی خودکشی کرنے کے لیے ایک کنویں کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ اس دنیا سے جان چھڑا لوں، کنویں میں گر جاؤں اور کسی کو خبر بھی نہ ہو، مگر اچانک میرے دل میں آپ کا خیال آ گیا۔ میں نے سوچا پہلے جا کر حضرت مولانا رومی کے پاس اپنا دکھڑا سنا دوں، اس کے بعد وہ جو مشورہ دیں گے میں وہی کروں گا۔ حضرت مولانا رومی نے اس شخص کی رداد سنی، پھر نرمی سے فرمایا، اے دکھی انسان، یہ تو بتا کہ آخر تیرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ شخص روتے ہوئے بولا، حضرت، بہت سے گنہگار لوگ مرنے کے بعد جہنم میں جاتے ہیں، مگر میں ایک ایسا گنہگار ہوں جو جیتے جی جہنم کے انبر جل رہا ہوں۔ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، وہ کیسے؟ اس شخص نے کہا، حضرت، میرا گھر جہنم کا گڑھا بن چکا ہے، جدھر نظر ڈالتا ہوں پریشانیاں ہی پریشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ میری بیوی نافرمان بن چکی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی ہے، مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی، میری بیوی مجھ سے نفرت کر بیٹھی ہے، روزانہ ہمارے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، میری وجہ سے بچے سخت پریشان رہتے ہیں۔
हमें लड़ते झगड़ते देखकर अब बच्चे भी बदमाश बन चुके हैं। हजरत बताइए मैं क्या करूं? उस शख्स की दर्द भरी बातें सुनने के बाद हजरत मौलाना रूमी समझ चुके थे कि आखिर उसका घर जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा क्यों बन गया है, आखिर उसकी बीवी उससे नफरत क्यों कर बैठी है और आखिर उसकी बीवी दूसरे मर्दों की तरफ क्यों माइल हो चुकी है। हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम जानते हो कि हमारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब सुबह नींद से बेदार होते थे तो सबसे पहले कौन सा काम किया करते थे? उस शख्स ने रोते हुए कहा, हजरत मैं नहीं जानता क्योंकि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, हमारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब सुबह सवेरे उठते थे तो सबसे पहले अपनी बीवी यानी हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की 3 चीजों को गौर से देखते थे। बीवी की 3 चीजों पर नजर डालने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने दिन का आगाज करते थे और फिर उनका पूरा दिन खुशी और सुकून में गुजरता था। सारा दिन अल्लाह की रहमत उन पर बरसती रहती थी। फिर हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, तुम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी बीवी की 3 चीजों पर गौर किया करो, बीवी की 3 चीजों पर नजर डाला करो, क्योंकि जो शौहर बीवी की 3 चीजों पर नजर डालते हैं अल्लाह उन पर राजी रहता है, फिर वो कभी परेशान नहीं होते और ना ही कोई परेशानी उनके करीब आती है। और जिन लोगों के घर आज जन्नत के टुकड़े बने हुए हैं वो लोग भी यही अमल करते हैं कि सुबह सवेरे उठते ही अपनी बीवी की 3 चीजों पर नजर डालते हैं। इससे बीवी की जान में जान आ जाती है और पूरा दिन खुशियों में गुजरता है। फरमाया, अगर तुम भी अपने घर को जन्नत का टुकड़ा बनाना चाहते हो, अगर तुम भी बीवी को अपना दीवाना बनाना चाहते हो तो सुबह नींद से उठते ही सबसे पहले बीवी की 3 चीजों पर नजर डाला करो, फिर खुद पर भी गौर किया करो। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आएगा तुम्हारा घर जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगेगी। ये सुनकर उस शख्स ने रोते हुए कहा, हजरत जल्दी बताइए, मैं आपके फरमान पर अमल करूंगा। हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, सबसे पहले तूने ये करना है कि पूरा दिन कामकाज और मेहनत मजदूरी के बाद जब घर के अंदर दाखिल होना है तो दाखिल होते ही सबसे पहले बीवी के हाथों और उसकी पेशानी पर बोसा देना है, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ लेना है। और जब घर से बाहर निकलना हो, मेहनत मजदूरी के लिए जाना हो तो घर से निकलते वक्त भी बीवी के हाथ और पेशानी पर बोसा जरूर देना है। और हाँ, जब घर के अंदर दाखिल होना है तो अपने तमाम मामलात, अपना हिसाब किताब, अपनी उलझने और थकन सब घर से बाहर छोड़कर दाखिल होना है। घर के अंदर गुजारा हुआ पूरा वक्त बीवी के हवाले कर देना है। बीवी से मोहब्बत भरी बातें करनी है, उसकी बात गौर से सुननी है, उसके साथ वक्त गुजारना है और बीवी का हाथ भी बटाना है। और हाँ, जब सुबह सुबह उठना है, आंखें खुलते ही सबसे पहली नजर बीवी पर डालनी है। नजर डालते ही थोड़ा सा मुस्कुराना है और मुस्कुराते ही कहना है, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी जिंदगी की साथी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने का, आपने तो मेरी जिंदगी को 4 चांद लगा दिए। फिर बीवी का चेहरा देखना है और कहना है, आपका चेहरा जितना मुझे प्यारा लगता है, जितना खूबसूरत लगता है, उतना जिंदगी में कोई भी चीज हसीन नहीं लगती, कोई भी चीज खूबसूरत नहीं लगती। फिर दूसरी चीज, बीवी के किरदार पर नजर डालना है। किरदार चाहे कमजोर भी क्यों ना हो, आपने बेसाख्ता बोलना है कि आपका किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं सुबह सवेरे घर से बाहर निकलता हूँ तो तुम पूरा दिन घर में बैठकर मेरे आने का इंतजार करती हो, मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती, मेरे आने का शिद्दत से इंतजार करती हो, मेरी गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द को अपने घर में नहीं बुलाती। ये बातें, ये सब, आपका ये किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे आप पर बहुत ज्यादा फख्र रहता है। जहाँ भी जाता हूँ आपकी तारीफ करता हूँ और कहता हूँ कि मेरी बीवी भी जन्नत की हूर से कम नहीं है। जब तुम बीवी को ऐसे अल्फाज कहोगे तो बीवी तुम्हारे जुमले सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, अपनी तारीफ सुनकर उसका दिल खिल उठेगा, क्योंकि औरत की फितरत यही है। औरत जब अपने लिए इज्जत, कदर और मोहब्बत के अल्फाज सुनती है तो उसकी थकन उतर जाती है, उसके दिल के बोझ हल्के हो जाते हैं और वो अपने शौहर के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाती है जो शायद उसने कभी सोचा भी ना हो। और मेरे इस्लामी भाइयों, यही वो लम्हा होता है जहां औरत का दिल जीता जाता है, यही वो घड़ी होती है जहां घर जहन्नुम से निकलकर जन्नत का रास्ता पकड़ लेता है। अब उस शख्स ने बेचैनी से कहा, हजरत तीसरी चीज के बारे में भी बता दें। तीसरी चीज कौन सी है? हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, तीसरी चीज ये है कि जब तुम्हारी बीवी सख्त गर्मी में या शदीद सर्दी में किचन में खड़े होकर काम कर रही हो और तुम चारपाई पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे हो तो उस वक्त गौर करना कि वो भी तो एक इंसान है।
तुम्हारी बीवी भी तो एक इंसान है जो तुम्हें चारपाई पर बिठाकर खुद किचन में तुम्हारे लिए खाना बना रही है, ठंडे पानी में हाथ डालकर बर्तन धो रही है, 2-2 घंटे किचन में गुजारती है, और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, वो पहले तुम्हें खिलाती है, फिर खुद खाती है, फिर तुम्हारे घर से निकलने के बाद पूरा दिन तुम्हारे घर की सफाई सुथराई करती है, तुम्हारे कपड़े धोती है, तुम्हारे जूते पॉलिश करती है, तुम्हारे वॉशरूम साफ करती है। ये सब कुछ देखने के बाद फिर खुद पर गौर करना है कि क्या तुम बीवी की थोड़ी सी बात को दरगुजर नहीं कर सकते, बीवी के थोड़े से गुस्से को माफ नहीं कर सकते? क्या ये सब औरत की कुर्बानियां नहीं? हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, जब तुम देखो कि तुम्हारा घर तबाही की तरफ जा रहा है, तुम्हारा घर उजड़ने वाला है, तुम गरीब होने वाले हो, तुमसे रहमत के फरिश्ते रूठने लगे हैं, या बीवी और शौहर के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसी लम्हे अपने अंदर ये आदत डाल लो कि सुबह उठते ही बीवी की 3 चीजों पर जरूर नजर डाला करो, क्योंकि यही वो अमल है जो बिखरते घरों को संभाल लेता है और टूटते रिश्तों को जोड़ देता है। और जब घर के अंदर दाखिल हुआ करो तो बीवी की पेशानी और उसके हाथों पर जरूर बोसा दिया करो। ये बोसा सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि अमान, सुकून और यकीन का पैगाम होता है। हजरत ने फरमाया, जो लोग घर में दाखिल होते ही बीवी की पेशानी और हाथों पर बोसा देते हैं, वो दिन ब दिन खुशी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। वो गरीब होने के बावजूद भी दिल के अमीर होते हैं। उनके घरों में सुकून होता है और उनके चेहरों पर इत्मीनान होता है। वो लोग जो ये अमल नहीं करते, चाहे वो अमीर ही क्यों न हो, फिर भी परेशान रहते हैं। उनके घर में दौलत होती है लेकिन सुकून नहीं होता, क्योंकि याद रखो, सुकून मोहब्बत से आता है और मोहब्बत एहतराम से जन्म लेती है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, ये थी वो 3 बातें जो बीवी में नज़र रखनी चाहिए, ताकि बीवी शौहर की दीवानी हो जाए, दिल से जुड़ जाए और रिश्ता बोझ नहीं बल्कि नेमत बन जाए। अगर मैं अपने नबी की बात करूं तो मेरे नबी की भी यही आदत करीमा थी। वो हज़रत अम्मा आयशा से इतनी मोहब्बत करते थे, इतना एहतराम करते थे कि हमारी सोच वहाँ तक पहुंच ही नहीं सकती। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते थे तो खुशी खुशी पहले अपनी बीवी को खिलाते थे, और जब पानी पीते थे तो पहले अपनी बीवी यानी हमारी माँ हजरत उम्मे आयशा रजी अल्लाह अन्हा से पूछते थे, ए आयशा बताओ ना, तुमने ग्लास की कौन सी तरफ से पानी पिया है, मैं भी इसी तरफ से पानी पीना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, यही मोहब्बत है, यही एहतराम है, यही वो तरीका है जिससे दिल जीते जाते हैं और रिश्ते हमेशा के लिए मजबूत हो जाते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, आज हम लंबी लंबी बातें करते हैं मगर छोटी छोटी सुन्नतों को भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि बीवी फर्मा बरदार हो, मगर हम खुद ये नहीं करते। हम नहीं सोचते कि हमने उसके दिल के साथ क्या सलूक किया। हम चाहते हैं कि घर में सुकून हो, लेकिन हम सुकून के दरवाजे पर दस्तक ही नहीं देते। याद रखो, औरत को कैद नहीं किया जाता, औरत को जीता जाता है, इज्जत से, मोहब्बत से, तवज्जो से। इस्लाह ये है कि आज से ही अपने रवैये को बदल लो, अपनी नजर को पाक करो, अपनी जबान को नर्म करो और अपनी बीवी को वो मकाम दो जो अल्लाह और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। क्योंकि जिस दिन शौहर ने बीवी को समझ लिया, उस दिन उसका घर खुद ब खुद जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों, कितने नादान लोग हैं जो अपनी बीवी को जूती समझते हैं। कहते हैं बीवी जूती की तरह होती है, जब दिल चाहे बदल लो। लेकिन असल हकीकत ये है कि ऐसे लोग खुद को जूती की तरह समझते हैं, इसीलिए बीवी को जूती जैसा समझते हैं। हालांकि यही बीवी ताज की तरह भी हो सकती है अगर मर्द खुद को बादशाह समझे, क्योंकि बादशाह के सर पर जूती नहीं बल्कि ताज होता है। और जिसने अपनी बीवी को ताज बनाया, अल्लाह ने उसके सर को बुलंद कर दिया। मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, औरत कमजोर नहीं होती, उसे कमजोर बनाया जाता है, और जिस दिन उसे इज्जत मिल जाएगी वो घर को महल बना देती है। यही इस्लाह है कि आज से अपनी सोच बदल लो, जबान नरम रखो, नजर पाक रखो और बीवी को वो मुकाम दो जो अल्लाह ने दिया है। क्योंकि इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत वापस मिलेगी। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मुझे उम्मीद है आज का बयान आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आज का बयान आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, तबसरों में अपनी राय जरूर दें।